गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आप ये ध्यान देके सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, बस थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तो लो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, a equals to 1 2 3 up to 13 14, r is defined on a to a such that r equals to xy 3x minus y equals to 0. It is in set builder form and it is easy if we convert in roster form. So we can write r equals to, देखिए 3x minus y equal to 0, therefore y equals to 3x, that is y is 3 times of x, therefore r is, if x equals to 1, y equals to 3, x equals to 2, y equals to 6, x equals to 3, y equals to 9, and 4 12, 5 15. But 5 15 is not in A. ये 14 तक ही है तो ये इसमें नहीं आएगा। तो R क्या हुआ 1 3 2 6 3 9 and 4 12। अब आप इसमें देखिए, पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। क्लियरली it is not reflexive since 1 1 is not there, 2 2 is not there, 3 3 is not there, therefore a or we can say x is not belongs to R for every x belongs to A. Clearly x not belongs to R for all x belongs to R. Therefore it is not reflexive. Second one, symmetric. 1 3 is there but 3 1 is not there, therefore it is not symmetric. 2 6 है, 6 2 नहीं है, 3 9 है, 9 3 नहीं है, 4 12 है, 12 4 नहीं है, तो अल्टीमेटली इट इज नॉट symmetric. तो आप क्या लिखेंगे, if x y belongs to R, then y x is not belongs to R for all x y belongs to A. Therefore it is not symmetric. नंबर थर्ड लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का देखो क्या है इसमें, 1 3 and 3 9। इसको देखिए आप 1 3 and 3 9, तो इसमें 1 related to 3, 3 related to 9, therefore we have to check for 1 and 9, and 1 and 9 इसमें नहीं है, therefore it is not a transitive. Since 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 not belongs to R, therefore it is not a transitive. Hence the relation R is not reflexive, not symmetric and not a transitive. Second one, second question है, second part,
R is defined n to n where R equals to x y, where y equals to x plus 5 and x is less than 4. Y defined from natural number to natural numbers and defined as y equals to x plus 5, x is less than 4. It means x की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा 1 2 3 एंड 1 2 3 ओनली. तो इसको भी हम क्या करते हैं रोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. देखो ये है आपके पास इफ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू 8. 4 लेंगे तो 4 प्लस 5, 4 ले नहीं सकते इसमें, x is less than 4 only. Therefore, it is the relation. Now, clearly, it is not reflexive. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, not here. Therefore, it is not reflexive. Clearly, x not belongs to R for all x belongs to n. Therefore, not reflexive. Second one, if x y belongs to R, implies that x y belongs to R, then y x belongs to R or not. ये आपको चेक करना है. 1 6 है इसमें लेकिन 6 1 नहीं है, तो आप क्या कहेंगे y x not belongs to R for all x y belongs to natural number. सबके लिए ऐसा नहीं है, therefore not symmetric. नंबर थर्ड एंडिंग लास्ट से करते हैं ट्रांजिटिव. 1 6 लेकिन 6 किसी से कनेक्टेड नहीं है, 2 7 लेकिन 7 किसी से कनेक्टेड नहीं है, 3 8 but 8 is not related to any other element. Therefore we have no need to check for third part. जो डेफिनेशन बताया था ना, x y belongs to R, y z belongs to R, then we have to check for x z belongs to R or not. तो यहाँ हमें इसको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है. क्लियरली इट इज ट्रांजिटिव. Therefore, R is neither reflexive nor symmetric but transitive. कंफ्यूज नहीं होना है आपको. लास्ट वाले ट्रांजिटिव को आप अच्छे से देखेंगे इसको. नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड. थर्ड पार्ट है इसका. a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and R is defined from A to A such that R equals to x y y divisible by x. देखो इसमें आप स्टार्ट करते हैं. इसमें वैसे आपको जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में बनाना थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे ही कर लीजिए. फर्स्ट लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव. देखो इसमें सिंस x is divisible by x itself,
हर एलिमेंट है, हर नंबर है, खुद से डिविजिबल होता है, तो आप क्या कहेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, 1 divisible by 1, 2 divisible by 2, 3 divisible by 3 and so on. नेक्स्ट वन सिमेट्रिक, तो इसका क्या कहेंगे आपने, रिफ्लेक्सिव. नंबर 2 सिमेट्रिक. देखो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या करना है, पहले लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स if y divisible by x, then x is divisible by y or not? No, obviously, since 2 is a 4 is divisible by 2, but 2 is not divisible by 4. It means y x is not divisible, not belongs to R. Therefore, not a symmetric. Number 3 for transiting. Transiting में आपको क्या चेक करना है, if x y belongs to R and y z belongs to R, ये आपको लेके चलना है. x is related to y and y is related to z. Then now we have to check for x z belongs to R or not. So इसका मीनिंग क्या हुआ, implies that y is divisible, अब शॉर्ट में ले लेते हैं, y is divisible by x and z is divisible by y. y x से डिवाइड हो रहा है और z y से डिवाइड हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप x और z के बारे में, z इज ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय x, z इज डिविजिबल बाय x, implies that x z belongs to R, hence it is transitive. मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं. सपोज आपने कोई एलिमेंट लिया, 4 इज डिवाइडेड बाय 2 and 8 is divided by 4, then 8 is divided by 2 also, hence it is transitive. तो अब R के लिए क्या कहेंगे, it is reflexive but not symmetric, but it is transitive. Therefore, R is reflexive, transitive, but not symmetric. Okay, next part. Next is number 4. क्वेश्चन 4 है, R is defined from Z to Z. Z is set of integers such that R equals to all of x, y, x minus y is an integer. देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, रिफ्लेक्सिव. सिंस x minus x is always integer, x minus x equals to 0 is a integer, implies that x belongs to R for all x belongs to Z. Therefore, it is reflexive. Number 2,
सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या आएगा? इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा? इंटीजर। जैसे 1 माइनस 2 है, ये इंटीजर है, तो 2 माइनस 1 भी क्या होगा? इंटीजर। implies that y minus x is also integer, implies that y x belongs to R, therefore it is symmetric. xy belongs to R, then yz is also belongs to R, therefore it is symmetric. Number 3, transitive. थर्ड में क्या लेना आपको? स्टार्ट करना है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर एंड वाई माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर। तो आप क्या करेंगे? किसके लिए चेक करना आपको? y माइनस एक्स माइनस जेड के लिए। तो x माइनस जेड को हम देखो क्या लिख सकते हैं इसमें? सिंस x माइनस जेड इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, इट इज एन इंटीजर प्लस y माइनस जेड, x माइनस वाई इज इंटीजर, y minus z is integer, therefore integer plus integer is also an integer, implies that x z belongs to R, therefore it is transitive. तो R के लिए अल्टीमेटली फाइनल क्या है इसमें? therefore R is reflexive, symmetric and transitive, all three. नेक्स्ट वन, पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट में अगेन 5 पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेते हैं इसमें। नंबर 5, हाँ तो देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, आर इक्वल टू एक्स वाई, x and y work at same place. Again we have to check for first one, reflexive. Since x and x work at same place, दोनों सेम है तो एक ही जगह होंगे, implies that x belongs to R for all x belongs to R। और देखो इसमें a क्या था? x belongs to a, a क्या दे रखा आपको इसमें? a is set of human beings lying in the same city, implies that it is reflexive. Second one, symmetric. If x y belongs to R, स्टार्ट कहां से करेंगे आप? If x y belongs to R, it means x and y work at same place. इसका मीनिंग क्या हुआ? y and x also work at same place. इसका मीनिंग है y x बिलोंग्स टू R। दिया क्या था आपने? x y बिलोंग्स टू R, देन y x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में देखिए आप स्टार्ट करेंगे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मीनिंग क्या इसका, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, देन व्हाट अबाउट एक्स एंड जेड? X and Y work at same place and Y, Z also work at same place. It means X, Y and Z all three are work at same place. Implies that X and Z work at same place. Implies that X belongs to R, or X belongs to R, it means it is transitive. तो आप इसके लिए फाइनली क्या कहेंगे, R के लिए R is reflexive, symmetric and also transitive. R is reflexive, symmetric and intransitive. हाँ, नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं हम पार्ट बी। और बी पार्ट है, देखो इसमें एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी एज इट इज सेम, बस ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लाइव इन सेम लोकेलिटी, एक्स एंड एक्स in same locality, therefore it is reflexive, symmetric and transitive. आप इसको सेम इसी वे से खुद कर लेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट सी। तो सी है इसमें R इक्वल्स टू एक्स वाई, X is exactly 7 centimeter taller than Y। X है Y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव फर्स्ट। सिंस X is cannot be taller than itself, कोई भी है खुद से बड़ा नहीं हो सकता, therefore it is not reflexive. X not belongs to R for all X belongs to A again वही है, आप उसी समझ लें। A is set of human beings in the same locality, implies that it is reflexive. Number 2, symmetric। तो देखने को आप वैसे भी सिंपली देखते ही आपको पता लग जाएगा कुछ क्वेश्चंस के लिए, लेकिन यदि आपको सिस्टमेटिक करना है या करके दिखाना है, क्वेश्चन है ये सपोज 4 मार्क्स में आ गया, तो आपको इसी तरह से पूरा डिटेल से करके दिखाना है। यदि एक ही नंबर का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली उसको समझ के आंसर दे सकते हैं। तो इसमें हम चेक करके बता रहे हैं, आप जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। सिमेट्रिक, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या है? एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, इट मीन्स वाई इज 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन y। और आप ये कह सकते हैं y cannot be taller than x, implies that y x belongs to not belongs to R, it is not in symmetric। यदि x y से बड़ा है तो y x से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा उससे, वो तो इससे रिलेटेड नहीं है। नंबर 3, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या चेक करेंगे हम? 3 एलिमेंट्स के लिए, इफ
x y belongs to R and y z belongs to R. It means x is 7 centimeter taller than y and y is 7 centimeter taller than z. फाइनली हम क्या कहेंगे, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से. x और z का क्या कहेंगे, x is 14 सेंटीमीटर taller than z. x is 14 सेंटीमीटर taller than z. और हमने रिलेशन किसका लिया हुआ है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर का. इट मीन्स x है वो z से कनेक्टेड नहीं होगा. x z not belongs to R or it means it is not in transitive. तो आप फाइनली क्या कहेंगे एक साथ में, R is ये नॉट रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे आप इसको. x not belongs to R, therefore it is not in reflexive, not symmetric and not in transitive. Therefore R is neither reflexive nor symmetric nor in transitive. तीनों ही नहीं होगा इसमें. तो नेक्स्ट से इसका पार्ट नंबर डी देख. हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप इसका डी पार्ट. डी पार्ट क्या देखा, आर एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, सिंस एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स. तो ये खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, तो क्या होगा इसमें, every element not connected to itself implies that x belongs to R and hence it is not reflexive. Second one for symmetric, x y belongs to R. आपने लिया x y belongs to R, इसका मीनिंग क्या है, x is wife of y. तो अपोजिट क्या होगा इसका, y is husband of x. लेकिन हमने रिलेशन क्या रखा है, वाइफ. तो वाइफ तो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, y x not belongs to R and hence it is not in symmetric. Number third, transitive. If x y belongs to R and y z belongs to R, ये आपको लेना होता है. लेकिन ध्यान दीजिए आप इसमें देखो क्या है, x is wife of y, x is wife of y, x is female and y is male. फिर हम यदि ये कहें y z belongs to R, तो ये अपोज करेगा यहाँ पर. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फर्स्ट वाला फीमेल है, फर्स्ट वाला फीमेल और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, मेल. ये मेल है तो ये फीमेल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता. इसका मीनिंग है ये पॉसिबल ही नहीं है. एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर. और आपको देखो स्टार्टिंग डेफिनेशन बताया था मैंने, if xy belongs to R and yz belongs to R, then we have to check for xz belongs to R. तो हमें सिंपल आप इतना लेंगे, तो no need to check in transitive. तो आप क्या कहेंगे इसको, not in transitive. क्या होगा ये, ट्रांजिटिव. ये सेकंड पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव. फाइनली R is neither
reflexive nor symmetric but intransitive. ओके, नेक्स्ट लेते हैं पार्ट नंबर ई, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। थोड़ा सा काफी लंबा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। नंबर 5 है, देखिए और सॉरी ई पार्ट, और ई पार्ट देखा है तो r इज इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर x इज फादर ऑफ y। सेम डी पार्ट की तरह थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट वन, सिंस x इज नॉट फादर ऑफ इटसेल्फ, खुद का फादर नहीं हो सकता, इसका मतलब है खुद से कनेक्टेड नहीं है। x से नॉट बिलोंग्स टू r, इट मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या लेंगे, इफ x y बिलोंग्स टू r, इट मीन्स x is father of y, xy belongs to r, it means x is father of y, it means y is son of x, not father। रिलेशन किसका है, फादर का, और फादर का रिलेशन है तो आप क्या कहेंगे, y x not belongs to r, hence it is not symmetric also। Number 3, transitive, if x y belongs to r and y z belongs to r, क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है क्योंकि x ही y का फादर है तो y भी किसी और का फादर हो सकता है, तो इसमें ये पॉसिबल है। अब हमें चेक किसके लिए करना है, x और z के लिए। x इज फादर ऑफ y and y is father of z, it means x is grandfather of z, x है y का फादर, y z का फादर है, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ से देखिए इसमें, तो z x क्या होगा, z का ग्रैंडफादर, x इज ग्रैंडफादर ऑफ z, और हमारा रिलेशन किसका है, फादर का, इट मीन्स x is z not belongs to r, and not belongs to r, it means not a transitive। और फाइनली आप टोटल आप आके लिए एक साथ क्या कहेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर r is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा था, हालांकि इसमें 10 पार्ट्स हैं, 10 क्वेश्चंस मान के चलिए आप लोग, लेकिन कोई नहीं, आप इजीली वे में इसको आप